don't be afraid to be first. You don't need to have a surname in law. You need to have substance. Read the law like it is alive, not just as a section, but as a story of real people. Be patient. Hello and welcome back to another episode of the Superlaw YouTube channel. Today we are joined by Advocate Varsha Singh. Ma'am is the founder and lead counsel at Lexwent Partners and a passionate litigator whose journey from Varanasi to corridors of the Supreme Court reflect dedication, resilience, and purpose. A graduate of Campus Law Center, University of Delhi, she has carved a niche in criminal, constitutional, and family law. With years of experience before the High Court of Lucknow and other forums, she combines sharp advocacy with deep legal insight. Beyond the courtroom, she is devoted to mentoring judicial aspirants and advancing the cause of justice through clarity and conviction. Thank you for being with us today, ma'am. My name is Anshi, and I'm a senior associate with the Super Lawyer team. At Super Lawyer, we showcase inspiring journeys of legal professionals offering valuable insights that motivate and benefit our viewers, which are young lawyers and the legal community at large. Thank you so much, Anshi. Thank you so much, Super Lawyer, for calling me on your platform. And it is always indeed a great experience sharing my journey that may go to a lot of law students. And उनको भी वो मोटिवेशन मिले कि ज़रूरी नहीं है कि लॉ में कोई लीगल सरनेम हो या ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चैम्बर को इनहेरिट करें टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर. That's a beautiful thought. And so, my first Surely. question would be that before establishing yourself as an independent counsel, what were some of the early instances that motivate you to pursue law in See, your I life? was early a management student by background. After my graduation, I did PGDM, and honestly, I had no family legacy in law. As I said, no inherited chamber, no legal surname, no ready made network. But one thing I had one unshakable thought since very childhood that law will be my everything one day. Even when I was not even knowing what exactly is law, I did not even understand what exactly is constitution. I was a management student. कभी सोचा भी नहीं था कि how the courtrooms look like. I was always driven by an idea of justice कि भाई मुझे कुछ करना है. अब वो कैसे करना, how I will achieve, I wasn't aware of. I grew up observing people around me who often suffered because see they are not wrong, but they are not aware of the justice, they are not aware of the rights. So I thought pursuing MBA की कर लिया, because everybody when they complete their graduation they think कि आपका करियर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, कि भी आपको ऐसा ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए जो आपको तुरंत जॉब लग जाए जिसमें अब लॉ एक ऐसा फील्ड तो था नहीं, बिकॉज मैं कहाँ से आ रही थी, मैं वाराणसी से में आके मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया एंड देन माय एमबीए. तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो था कि हमें नौकरी चाहिए, दैट वाज द लार्जेस्ट थॉट दैट वाज टर्निंग इन माय माइंड कि भाई मुझे तो नौकरी चाहिए, नौकरी करना है. अच्छा, नौकरी करने के लिए इट वाज लॉ. तो हम नहीं कह सकते कि लॉ आपने किया और आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, नहीं. ये फैक्ट तो ऑल द लॉ स्टूडेंट दे हैव टू कीप इन देयर माइंड कि लॉ एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको कुछ आप अपने आप को स्टैंड करते हैं. सो आई थॉट लेट्स डू लॉ. इवन आई हैव नॉट टेकन एडमिशन, पीपल वर आस्किंग कि आप क्या करेंगी. देन आई सेड कि नहीं, मैं बहुत दिन तक जॉब नहीं करूंगी. एंड देन फाइनली आई ओनली डू अ लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. दैट वाज ओनली थॉट आई हैव, दैट आई विल गो टू कैंपस लॉ सेंटर वन डे एंड आई विल परस्यू माय लॉ. एंड दैट वाज द ओनली थॉट आई हैड इन माय माइंड इन ईयर 2010. I appeared in the entrance. By God grace, I cleared the entrance in very first attempt of Campus Law Center. I took the admission there. And at the time when I was pursuing my law, the only thought I have in my mind कि मुझे जो है ना अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने कॉलेज पे इसको समझना होगा. बिकॉज लोग लॉ ऐसे ही कर लेते हैं. इफ यू आस्क द जनरेशन कि आज के बच्चे तो फिर भी चलो बहुत ही ऑनेस्टी से अपना करियर चूज करते हैं. अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो उन समय लॉ क्या था, लॉ जो कुछ नहीं करता था वो लॉ कर लेता था, क्योंकि वो लोग ऐसे ही लॉ कर लेते थे. उनका कोई ऐसा ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था. मेरे लिए बहुत तगड़ा मोटिवेशन था लॉ करना, क्योंकि कुछ फैमिली के ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पे कि मुझे लगता था कि मैं खुद भी अपनी लड़ाई लड़ूंगी. तो मैं अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी लड़ाई को और बेहतर लड़ने के लिए मैंने लॉ एज एन करियर चूज किया. और देन आई हैव डन माई LLB फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर.
and then my LLM also from Campus Law Center. And since then, and that was the only motivation कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है. अच्छा, इसके पीछे एक इमोशनल स्टोरी भी है. इमोशनल स्टोरी है कि my mother used to say, भाई, when I was 4 5 years old, I always used to say that one day I'll become a lawyer. And that was also churning in my mother's mind कि when I will complete my MBA, she will tell me that why don't you go and do a law. तो ये भी एक था कि हाँ, मुझे मम्मी का भी कहना था कि लॉ कर लो, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज माई फादर्स ड्रीम. आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 4 years old. सो इट वॉज माई फादर्स ड्रीम ऑल्सो कि मैं लॉ करूं. बट मेरे लिए ये था कि मैं लॉ अगर करूंगी, ये मेरा पहले से डिसाइडेड था कि इफ आई विल एनी डे आई विल गो फॉर लॉ, आई विल ओनली डू लॉ फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर. दैट वॉज द ओनली थॉट आई वॉज हैविंग. What an amazing and inspiring journey. And because, a lot of people aspire of it and they are not able to complete And it. see, I tell you that, so while everyone around me saw management as a safe path, I saw law as my calling. At that time, when everybody was saying, ki, bhai, I was working with career coaching in Allahabad. So management was a safe path for me. But at that time also, I saw law as my calling. It wasn't a career choice. It was 100% conviction. I knew because I had one thought in my mind. I knew that one day I wanted to stand in the court, not just to argue, just to make someone believe that truth still have some voice. That inner fire born out of a sense of fairness and empathy in my mind, and is something what brought me into law. And even today, that same conviction drives every case I take, and every student I mentor, and every initiative I lead. That is the only thought I carry. That's a beautiful thought, ma'am. Now, coming to the next part, I would like to really ask you what were the initial experiences after you completed your law that laid foundation to your practice and helped you in every role building your journey? If I say, Ansi, every stage of my career became a stepping stone, from my days as a law student at Campus Law Center to assisting my senior at courts. I learned that law rewards those who are patient, consistent, and disciplined. That I always keep on saying that law उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो पेशेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं. सी, आई टेल यू, व्हेन आई वाज परसुइंग माय लॉ, ओनली वन थॉट, बिकॉज हमने आपको बताया कि भाई हमारे पास तो कोई इनहेरिटेड चैम्बर नहीं था, ना ही कोई लीगल सरनेम था कि भाई ये इनकी बेटी है, ये उनकी बहू है, ये इनकी बीवी है. ऐसा कोई हमारे पास लेगेसी नहीं था. अब जब लेगेसी नहीं था, तो जो यंग लॉयर्स होते हैं या जो नए लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि यार अब हमारे पास कोई लेगेसी नहीं, हमारे पास करियर सेफ है कि भाई हमें जुडिशरी की तैयारी कर लेते. तो हमने जो है 2012-13 में से जो है बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड दिया कि नहीं, मुझे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना है. बट एक था कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना, और मैंने अपना 100% दिया उसमें. आई रोट मोर देन 16 मेन्स, 6 इंटरव्यूज, एंड आई हैव गिवन माई 100%. बट जब हमें लगा कि नहीं, सिर्फ अगर हम कोर्ट बिना गए से पढ़ाई करते रहे, और क्योंकि आप एक टाइम के बाद जो स्टूडेंट होता है ना, वो क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है, जुडिशियल सर्विस में क्या होता है, वैकेंसी बहुत डिले होती है. तो मेरा ये था कि नहीं, मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी करूंगी. सो आई हैड माई सीनियर मिस्टर पंकज कुमार सिंह, हु इज एन AOR इन द सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ. मैंने उनसे काफी कुछ सीखा. मैंने उनसे सीखा कि जो लॉ आपकी जिंदगी में जो चेंज ला सकता है ना, और अगर आप किसी भी चीज के लिए पैशनेट है, सो दैट इज ओनली लॉ दैट कैन मेक यू पैशनेट. क्योंकि आप, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक ही समय में आपको आपके राइट एंड ड्यूटीज दोनों बताता है. और आप अगर कभी भी समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं या किसी के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज समवन्स लाइफ, और योर डिसीजन कैन इम्पैक्ट समवन्स लाइफ, लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं. या तो आप जुडिशरी ज्वाइन करिए. अच्छा, जुडिशरी क्या था कि हो सकता है डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था, इसलिए इतना करीब भी जाके जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के मैं क्लियर नहीं कर पाई. सो जब कोई काम मिलता था, सपोज दैट आई हैव गॉट सम ड्राफ्टिंग, अगर मुझे कोई ड्राफ्टिंग मिला है, तो मुझे ये था कि नहीं, चाहे मेरी रात बीत जाए, बट मुझे इस ड्राफ्टिंग को इस बेहतर तरीके से करना है कि माई सीनियर विल ऑलवेज प्रेज मी. सो दीज आर द मोमेंट जहां पे आप लर्न करते हो. और आपको ये शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्ली डेज में क्या होता है कि होता ये कि भाई हमारे पास अगर कोई अपने घर का चैम्बर नहीं है, कोई लीगल सरनेम नहीं है, तो हम किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं. अच्छा, आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो सीनियर नहीं ज्वाइन करना चाहता. जब तक आप सीनियर नहीं ज्वाइन करेंगे, तब तक आप बहुत सारे कोड क्राफ्ट सीख ही नहीं सकते. आई हैड वन माई सीनियर कि आपको किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है, आपको कैसे आर्ग्यू करना है. एंड दे टॉट मी द ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर द प्रोसेस एंड द वैल्यू ऑफ द प्रिपरेशन, हाउ यू वैल्यू योर प्रिपरेशन, हाउ यू prepare your case, how you are thorough with the every facts, how you are thorough with the judgments. And that definitely helped me in my early code practices, and they also helped me building my journey which I am today. That's an amazing, amazing
thought and also an amazing journey. Coming to my next question and forwarding the same conversation, I would really like to ask you what was that one turning point in your career that inspired you to embrace your own potential and step into independent practice? Because everyone has that one point where they think that, But before I would be discussing that point, there come a moment when in everybody's life when a person realizes that growth demands courage. Growth always demands courage, and courage to stand alone, to argue your own case, and to take responsibility for every word you say in the court. It is very very important. And I had immense respect for my mentors कि भाई हाँ मेरे seniors बहुत अच्छे हैं. But I also knew that I had to carve my own identity one day. That leap of faith from assisting to leading, always I was assisting, now I wanted to lead the show. And that was my turning point. I realized the first day I argue independently, I felt fear, definitely, yes, but also a freedom, the freedom of taking my own decision, taking my own point and getting relief from the court. And that freedom becomes addictive. कि भाई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको लगेगा कि नहीं मैं कैसे करूंगी, और जब आपको लगेगा ना कि आपने कर लिया, तो वो आपका डर खत्म हो जाएगा. एक बात जो यंग जनरेशन को मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूंगी कि जब कभी भी कहते हैं ना लोग कि हाँ आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है, लेकिन जब आप अपने केस में बहुत मेहनत करते हो, आपको एक एक फैक्ट्स पता होगा अपने केस का, और आपको ये पता होगा कि खुद के पॉइंट से ज्यादा ये पता होगा कि भाई आपका ऑपोजिट काउंसिल क्या सवाल पूछेगा. जिस दिन आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी, आपका ब्रेन उस तरफ उस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, उस दिन ये समझ लीजिएगा कि आप तैयार हो गए अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के लिए. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप पहले दिन डायस के सामने, क्योंकि देखो आजकल के बच्चों को तो फिर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वो मूड कोर्ट करते हैं, वो बहुत सारा प्रैक्टिस पहले ही कर लेते हैं. हाँ फिर भी जब आप पहली बार कोर्ट में खड़े होगे ना, तो आई टेल यू अंशी, आपको ऐसा लगेगा कि आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको डर लगेगा. लेकिन जब कोर्ट आपको, अच्छा कोर्ट बहुत पैशनेट होके सुनता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो हाई कोर्ट, तो बहुत जजेस आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव, और खास करके यंग बच्चों के साथ तो वो और कोऑपरेटिव है, बिकॉज उनको भी लगता है कि इट बेस्ट ब्रेन शुड कम बिफोर द कोर्ट. और जब एक बार वो डर खत्म हो जाएगा ना, वो कहते नहीं है ना कि डर के आगे जीत है, तो ये बिल्कुल सही है कि भाई डर के आगे जीत ही है, एंड दैट फ्रीडम बिकम्स एडिक्टिव. absolutely, man. Even the younger generation today have a lot of things that the judiciary also supports, and there are a lot of things that हाँ as यस students ऑफ can learn. कोर्स. Now, coming to the next part, that after you established your chamber, of course, it would not have been easy. So, what would be the initial obstacles or setbacks or anything like that? And even what would be the first breakthrough, you would say, in your practice that gave you that confidence? So, if you could let See, us know, thank you. I was a full time aspirant for judicial service examination. When I started my own practice, I started from Delhi, and now I am practicing in Lucknow High Court and also taking care of the cases of Delhi. So I had more dreams than resources because I come from very humble background where there were no godfathers, only grit is there. My early breakthrough came when I represented my client and pro bono. उन्होंने कहा कि मैडम, अभी मैंने लेटेस्ट को बता रही हूँ कि मैडम आई डोंट हैव फेथ इन जस्टिस, मुझे न्याय नहीं मिलेगा. मैंने कहा मैं आपका केस लड़ूंगी, एंड दैट वाज अ फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस था. मतलब उसको उसने साफ कह दिया कि कुछ होना तो है नहीं मैडम, कुछ होता तो है नहीं कोर्ट में. अच्छा लोगों के ना ये ऐसा रिसेंटमेंट आ भी जाता है कि नहीं अब कुछ नहीं होना, तारीख पे तारीख लग रही है. द वन सेंटेंस वाज वर्थ मोर देन एनी जजमेंट. सून आफ्टर आई डिसाइडेड टू डील हर मैटर, एंड किसी भी तरह से मैंने जितना भी जो मेरे पार्ट पे मेहनत था, जितना भी केस में मेरिट था, उस हिसाब से जब मैंने उसकी आंखों में वो खुशी देखी ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इट इज बियॉन्ड मनी. कुछ लोग लिटिगेशन को कह देते हैं कि बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत पैसा है. मेरे लिए जो है ना, पैसा तो देखिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको अपना एक सिस्टम बनाना है. बट एक लॉयर होता है ना, उसके लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है ना, वो उसकी क्लाइंट के आंखों में जब उसके प्रति वो जो खुशी होती है, और जब उसको न्याय दिला पाए, और वो जो फेथ होता है ना, वही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है. क्योंकि देखिए आप अगर क्लाइंट को क्यों रिलीफ नहीं दिला पा रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट. आपका कोई पॉइंट नहीं है. आप बहुत अच्छा आर्ग्यू करते हैं, कुछ नहीं. अगर आप, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से केस करें. कई बार कैसा होता है कि भाई केस में हमने बहुत अच्छा किया फिर भी हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है,
सो माई अर्ली ब्रेक थ्रू दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस एंड माई विजन वॉज दैट की जो सिंसियरिटी है, जिस भी सिंसियरिटी के साथ आप केस रिप्रेजेंट करते हो और जिस सिंसियरिटी के साथ अपने आप वैल्यू एड करते हो अपने प्रोफेशन में, सो दोज मोमेंट्स वैलिडेटेड माई बिलीव दैट ऑनेस्टी, preparation and empathy can outshine the privileges. That is one thing that I always keep telling the people, that you have to be honest, you have to be prepared, and once you are honest and prepared, so now the rest is in the hand of the judges and on the merit of your case, and even the client knows. कई बार कई बच्चे कहते हैं कि मैम क्लाइंट का फेथ नहीं जनरेट होता, नहीं, क्लाइंट अगर आप हार भी जाते हो किसी केस में या आपको ऑर्डर आप उसके क्लाइंट के मुताबिक भी नहीं मिलता, बट क्लाइंट को लगता है कि भाई मेरा लॉयर बहुत मेहनत किया है, तो क्लाइंट ऐसे भी केसेस में आपको अप्रिशिएट करते हैं। Yeah, ma'am, absolutely. It is the part and parcel of every case that wins and loses will be there, but the way you represent would be something that the clients Yes. appreciate. Coming to the next part now, like we discussed your cases, you have navigated different cases in criminal and constitutional law and various other areas. What has been that one most challenging case that you would say was difficult also, but it gave a lot to learn also? So, what was that one case? See, it is very important. One of my toughest case, I cannot name the case, wrongly accusing entire family, एक पूरी ही फैमिली के ऊपर एक दूसरा फैमिली मेंबर बहुत सारे क्रिमिनल लिटिगेशन उनके ऊपर क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च करते हैं और बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस में लास्ट जो एफआईआर एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के ऊपर करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, 307, आईपीसी का 307. अब नाउ द एंटायर डिस्प्यूट वाज अ सिविल डिस्प्यूट, but it has taken a color of a criminal litigation for the purpose of dealing with the property. So that was very important, and the charge sheet was prepared. Now my client was innocent because there was nothing in the case diary, and the police report is prepared, which has also lacking so many evidences that actually that incident did not even happened. It was a false articulation because the FIR was lodged by some female. So now I have to take that case before the high court for getting the charge sheet quashed. अब चार्जशीट क्वैश्ड हो गया, चार्जशीट क्वैश नहीं हुआ, चार्जशीट स्टे हो गया क्योंकि पारिवारिक मुद्दा था, फैमिली मैटर था, एंड दैट फैमिली मैटर कैन बी इवन सेटल्ड बाय द मीडिएशन. फिर उसके बाद आई हैव लॉट ऑफ मीडिएशन डन बिटवीन द फैमिली एंड देन फाइनली वी सक्सीडेड. दैट वाज वेरी डिफिकल्ट केस. सो देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन दैट टाइप ऑफ केसेस कम्स बिफोर द कोर्ट, और जहाँ पे कि एक्चुअली में डिस्प्यूट कुछ नहीं होता बट डिस्प्यूट बहुत बड़े बड़े सेक्शंस लग जाते हैं, तो वहां पे एज ए लॉयर आपको एनकरेज नहीं करना चाहिए. अगर ये पारिवारिक मुद्दा है, आपको लगता है दैट डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व by amicable settlement, that is through the mediation, so we should always encourage. There are certain cases which is not compoundable, but if both the parties are agree and the matter somehow has come up with the civil litigation, तो ऐसे cases में as a lawyer I can also say that कि we as a lawyer should encourage that the dispute should settle between the families amicably, because what matter is that कि family values भी बहुत matter करती है, कि फैमिली वैल्यूज ना खत्म हो जाए, क्योंकि जब झगड़े होते हैं परिवार में तो भूल जाते हैं लोग कि ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरे चाचा हैं, वी ऑल फॉरगेट, एंड देन ओनली वन थिंग दैट इज द एटीट्यूड ऑफ रिवेंज. और एज अ लॉयर आई डोंट एनकरेज कि भाई अगर मुझे लगता है कि हाँ ये डिस्प्यूट इस तरह से खत्म हो सकता है, सो आई ऑलवेज गो फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट, कि आप डिस्प्यूट को खत्म करिए. सी, वन ऑफ माई टफेस्ट केस was this, and there are n number of cases that I can discuss with, but what requires in all this is not the legal skill but also emotional courage to stand and also to give the best opinion to your client. कि कई बार ऐसा होता है कि हम बेस्ट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं. दैट केस टॉट मी दैट बीइंग अ लॉयर इज नॉट डिफेंडिंग द पॉपुलर साइड बट द राइट साइड. इट सेड कि भाई राइट क्या होगा, आप राइट क्या कर सकते हैं, राइट क्या हो सकता है इस केस में, कि राइट ये है कि भाई पारिवारिक मुद्दा है, किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा हो, कहीं भी फैमिली मैटर के डिस्प्यूट होते हैं, तो मेरा हमेशा रहता है कि अगर कहीं ना कहीं पार्टीज अगर अग्री हैं, सो आई विल ऑलवेज कॉल द पार्टी फॉर मीडिएशन, कि भाई आप आपस में अब सहमति से यू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट. So it reaffirmed my belief that justice often begins with the lonely voice, and I was proud to be that voice. For me it is always that कि भाई अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो आप पार्टीज को हेल्प आउट करो, और जहां पे अधिकारों की लड़ाई होगी तो वहां पे तो आप अपने क्लाइंट के साथ हमेशा खड़े रहते हो.
That's an amazing learning, ma'am. And I guess everyone, even every person, every lawyer, every नहीं, student नहीं, should एवरी लॉयर का मतलब एवरी फर्स्ट जनरेशन लॉयर फेसेस द इनविजिबल टेस्ट। आजकल के बच्चों क्या वो कॉर्पोरेट जॉइन करे, वो वकालत ही नहीं करना चाह रहे। उनको लगता है कि रेडीमेड। भाई ये बात सच है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपको इनविजिबल टेस्ट देने पड़ेंगे। There are going to be months with no cases, no income, plenty of self doubt. Let's like litigation is not my cup of tea, but every challenge become your own teacher. I read more and more. Every day I make sure that I will read and I will not sleep without reading. Networked better and stay grounded. कि भाई आपको लगता है कि आप नेटवर्क अपना बिल्डअप कर सकते हो और आपको ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि ये जो इनिशियल डेज के स्ट्रगल्स है ना, ये जो सेटबैक्स है ना, दीज आर नॉट द साइंस ऑफ फेल्योर। बच्चों को ये बात समझनी चाहिए। दोज अर्ली स्ट्रगल्स टॉट मी दैट द सेटबैक्स आर नॉट द साइंस ऑफ फेल्योर, दे आर द चैप्टर्स ऑफ स्ट्रेंथ that they are preparing me for the big battles. And same with the every student, every first generation lawyer, कि भाई आपके पास कोई केस नहीं आएगा, आप ऐसे बैठे रहोगे, बिल्कुल बैठे रहोगे। क्योंकि आप पे ट्रस्ट कैसे होगा? और ट्रस्ट तब होगा जब आप किसी भी एक क्लाइंट के लिए अच्छा परफॉर्म करके, और ऑर्डर शीट जब आएगा ना और आप उसमें अपना नाम देखोगे, तो वो जो दिन होगा ना, वो आपके जीवन का सबसे अलग और बहुत ही अच्छा दिन होगा आपकी जिंदगी का। और उसको पाने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। और देखिए, इफ यू आर कंसिस्टेंट देन नोबडी कैन स्टॉप यू। Absolutely, ma'am, absolutely. Looking at your journey today and all of the experiences that you had, it's absolutely fascinating. Now, coming to the very end of the session, I would like to ask you that, from early beginnings to leading your law firm and mentoring judicial aspirants also, what is your vision for future of your practice and future of yourself also? My vision is to create spaces where young mind, especially those come from the small towns, like where I come from, and dream without fear. मेरे घर में तो यार दूर दूर तक बहुत ज्यादा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। अब मेरे वाले जनरेशन में तो फिर भी लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन जिस मतलब मुझसे पहले तो बहुत ज्यादा मुझे याद ही नहीं कौन पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है। सो आई कम फ्रॉम दैट स्मॉल टाउन। अगर मैं कर सकती हूँ, सो एवरीबडी कैन ड्रीम ऑफ। एंड अगर मैं मेंटोरशिप की बात करूं, सो आई एम एसोसिएटेड विद द दे लॉ, वेयर आई ऑल्सो in my part time I mentor the student for cracking the judicial service examination, and that I'm mentoring since last 8-10 years. So I tell that preparing for judicial service will never stop you. It's not going to stop you कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है कि 3 years प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। तो अभी मैंने अभी ये पिछले भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि लॉ स्टूडेंट्स को ये समझ लेना चाहिए, यंग लॉयर्स को, यू आर फुल टाइम अ लॉयर एंड पार्ट टाइम एन एस्पिरेंट। सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट एन फाउंडेशन कि जहां पे बच्चों को लगे कि लॉ जो है वो सबके लिए है। द गोल इज वेरी सिंपल, एवरी स्टूडेंट शुड नो दैट देयर बैकग्राउंड डज नॉट डिफाइन देयर फ्यूचर, देयर एफर्ट डज। भाई आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको जज बनना है लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आप फर्स्ट जनरेशन वाले हो, क्यों इफेक्ट करेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए प्रैक्टिस करिए। और बच्चों को लगता है कि भाई वो मुझसे भी जुड़ सकते हैं, सो वी आर ओपन, आवर फर्म इज ओपन टू टेक ब्राइट एंड ब्रिलियंट माइंड्स। एंड फर्स्ट जनरेशन का कोई वैसा टैबू नहीं है कि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। इफ आई कुड डू, एवरीबडी कैन डू। That's really beautiful, ma'am. And thank you so much for joining us today. At last, I would say my advice, don't be afraid to be first. You don't need to have a surname in law. You need to have substance. Read the law like it is alive, not just as a section, but as a story of real people. Be patient. Success in law does not come overnight. पहली बात तो ये समझ लीजिए, इट कम्स थ्रू काउंटलेस डेज ऑफ साइलेंस, स्टडी एंड सिंसियरिटी। एंड रिमेंबर, लास्ट, one day your struggle will become someone else's inspiration. Beautifully put, and thank you so much for being with us today again, ma'am. I am personally very, very motivated and quite interested, and also I really learned a lot from your experiences. Thank you so much. I hope this interview serves as an inspiration to a lot of lawyers and even female lawyers also who wish to have a career as yours, and now they're open to even reach out to you. So, thank you so much. Sure, anytime. Thank you for being with us, ma'am. Thank you, super lawyer. Thank you, Anshi.